Again, welcome to my Piano Classes 1.0. Please subscribe and share my channel to increase the students on YouTube. We provide you the classes at the online basis of class 10 science and other classes like 6th, 7th and 8th and 9th. The today topic of the light chapter from class 10, that is sign convention for lenses. The sign conventions are the similar to the sign convention of the mirrors with some changes in the sign. We have studied here how the sign are used for the different values to solve the numerical problems related to the lenses. Now start with sign convention for lenses. Similarly, like for mirrors, we divide the lenses in 4 coordinates. The first coordinate is that is plus y axis, here that is minus y axis, here the plus x axis, here also axis, and there is also minus x axis. So these axes show the different sign of the values like plus and minus. For example, if I put the lens here in between the coordinate, this is the convex lens and this is the concave lens, like that. So there is 2 lenses are there. First one is the convex lens, second one is the concave lens. लाइक इन मिरर की तरह ही इसके अंदर ही आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस देख सकते हैं. एंड प्रीवियसली आई टीच यू अबाउट द ऑप्टिकल सेंटर्स, प्रिंसिपल एक्सिस एंड डिफरेंट अदर points of the lenses. Here we tell you about the sign. For example, for concave, I divide the category in the 2 parts. First one is for convex lens and second one for the concave lens. Convex lens and the concave lens. Convex lens is a convergent lens, as you know, convergent lens, while the concave lens is the divergent lens. I also make some diagram of concave lens, convex lens is like that. This is the convex lens, and this is the concave. Now the values, for example, values are similar like that. First one, distance of object, that is u. Distance of image, that is v. Distance of object, that is u from the mirror, lens से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द u. इस इमेज का क्या डिस्टेंस है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द v, लेंथ से. सेकेंड, थर्ड वन, फोकल लेंथ, दैट इज डिनोटेड बाय. दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स. इसके अलावा फोर्थ नंबर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, that is denoted by h. Fifth one, height of image, that is by h dash. Sixth one, magnification, that is by f. These are the points on which we have to use the sign positive and negative. Which one is the positive and which one is the negative for which lens? For example, if I take the u, so we know that always the objects are put on the left hand side. That's why the value of u is always negative.
की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इट मे बी फॉर कॉन्वेक्स, इट मे बी फॉर कॉनकेव। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, आप लिख सकते हो ऑलवेज। Second one, B, that is value of V, distance of image from the lens। तो V की वैल्यू होगी वो किस तरह से हम लेंगे। देखो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं, ध्यान समझना, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट इस साइड रहता है हमेशा, ऊपर की तरफ देखो लेफ्ट साइड है आपके, लेफ्ट हैंड साइड है, एंड द इमेज है वो हमेशा नीचे की तरफ बनती है जो राइट हैंड साइड बनती है, ठीक है। मिरर के केस में क्या होता है कि जो इमेज है वो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड ही बनती है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। इस केस में v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव किस केस में आ रही है, जो हमने आप लोगों ने इमेज बनाई थी, जो हम लोगों ने इमेज बनाई थी उसमें केस थे, केस फर्स्ट टू फिफ्थ तक, केस फर्स्ट टू फिफ्थ तक जो केस थे इमेज फॉर्मेशन के, उसके अंदर पॉजिटिव आ रही थी, तो इसका मतलब ये कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान समझना कि केस फर्स्ट टू फिफ्थ तक अगर बात करता हूं, आप मेरे प्रीवियसली वीडियोस पे जाके देखिए, उसके अंदर आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन की वीडियो मिलेगा, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा केस फर्स्ट टू फिफ्थ जो है वो रियल और इन्वर्टेड के लिए है, और उसके अंदर v की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। सेकंड नंबर, इसी केस में v की बात करते हैं, तो उसके अंदर अगर नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव आ रही है तो एक ही केस बचता है, केस नंबर 6, केस नंबर 6 जिसमें आएगी वर्चुअल एंड इरेंट। इस चीज को ध्यान रखिए कि पॉजिटिव आ रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर रियल और इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव आ रही है और नेगेटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेंट। मींस द इमेज इज फॉर्म्ड एट राइट हैंड साइड। किस साइड को बनेगी, राइट हैंड साइड। इमेज क्या बन रही है, राइट हैंड साइड, और इसके अंदर इमेज क्या बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग v की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव हमको ये बताता है कि रियल है कि वर्चुअल है इमेज। सेकंड नंबर, अगर मैं यही चीज कॉनकेव लेंस की बात करता हूं तो v की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। b केस में v की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ऑलवेज। कॉनकेव लेंस में v की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, बिकॉज द इमेज इज फाउंड एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द, मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और लेफ्ट हैंड साइड, ओके, ऑफ द लेंस। व्हाइल in case of convex there are two cases, case first and case second, that is case first is positive and case second is negative, for negative। तो पॉजिटिव मींस रियल एंड इन्वर्टेड, और v की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। नाउ केस नंबर सी, देखो जिस साइड इमेज बन रही है उस साइड का ही हम लोग क्या लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं, उसी साइड का हम लोग f लेते हैं, उस साइड का हम 2f लेते हैं। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड, अगर इमेज पॉजिटिव मतलब हमेशा किस हाथ को बनती है, हमारे राइट हैंड साइड को इमेज बनती है कॉन्वेक्स में, तो f की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, आपके पॉजिटिव रहेगी। वो बात अलग है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है कि पॉजिटिव आती है, किसकी वैल्यू, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही नेगेटिव आ रही, उससे नहीं लेना है, बट वी हैव टू पुट द वैल्यू f इज पॉजिटिव। हम लोग f की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। क्लियर। नाउ d, here in this case see the value of f is always negative, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होती है। क्लियर। कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रूल। नाउ फॉर द h, h means the height of the object।
इमेज की जो हाइट है उसका ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट इज डिनोटेड बाय h, ओनली h, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेम एज इन फॉर द मिरर। मिरर की जैसे ही इसकी वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एंड e h डैश, h डैश की बात करते हैं तो h डैश की बात जब करेंगे, अगर ये कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो हमेशा पॉजिटिव होती है, सॉरी नेगेटिव। h डैश अगर नेगेटिव है तो सेम इज क्या आएगी आपके, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये फिर वही केस चलेंगे, केस नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ। केस का मतलब यहाँ पे क्या है, इमेज फॉर्मेशन। देयर आर 6 टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड by the convex lens. The case first to fifth is negative, that is real and inverted, means RHS। आप देख लेना वीडियोस के अंदर, आप लोगों को वीडियोस में मिल जाएगा कि रियल और इन्वर्टेड इमेज किस तरह से बन रही है लेंस के अंदर। तो h डैश इज इक्वल टू नेगेटिव, h डैश की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, तो रियल और इन्वर्टेड। हमें ध्यान रखना v की वैल्यू और h की वैल्यू का कोई कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पे v पॉजिटिव है तो h नेगेटिव होगा, v अगर नेगेटिव है तो h क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो h डैश की जो सेकंड वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, दैट इज फॉर द केस नंबर 6। इसमें कौन सी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज LHS, दैट इज LHS। तो इसके अंदर दो केस हो गए, H वाले में दो केस है और V वाले में दो केस है। तो केस नंबर फर्स्ट नेगेटिव के लिए, केस नंबर सेकंड पॉजिटिव के लिए। फर्स्ट के लिए फिफ्थ टू फिफ्थ केस इमेज फॉर्मेशन का, पॉजिटिव के लिए सिक्स्थ केस इमेज फॉर्मेशन। तो इन दिस वे वी हैव टू आइडेंटिफाई 6 पॉइंट। Here also D, H की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, E H डैश की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, देखो इसमें वर्चुअल इरेक्ट बनती है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर? इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमको कॉन्वेक्स लेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि इसमें इमेजेस भी ज्यादा बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल इरेक्टिव बनती है। वर्चुअल इरेक्ट का सिर्फ एक ही केस है और रियल इन्वर्टेड के 5 केस हैं। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ m, लास्ट केस, दैट इज f, दैट m की जो वैल्यू होगी इसके अंदर क्या होती है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, RI का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है then it is virtual and erect, V and E का मतलब virtual and erect, that is m नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो virtual and erect। m means magnification and it is a unitless quantity, clear? Here is also E के बाद f, similarly m मतलब virtual and erect, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, virtual and erect। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसको साइन कन्वेंशन को पढ़ते हैं कि साइन कन्वेंशन के थ्रू हम लोग वैल्यू को किस पॉइंट पे किस तरीके से पुट करें, पॉजिटिव पॉइंट पुट करें कि नेगेटिव पुट करें, और इनको पुट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। क्लियर? तो हमको पोजीशन पता होनी चाहिए, हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअली इट इज द बेस्ड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किस तरीके से हमको वैल्यू को पुट करना है, और वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट किस वैल्यू के रूप में, ये किस साइन की फॉर्म में निकल रहा है, वही साइन हमको बताता है कि इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है। क्लियर? तो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर द lenses. Now the last topic of the chapter, that is the power of lenses. How we कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर का किस तरह से पता करें कि उसकी पावर क्या है। एक्चुअली द पावर ऑफ द लेंस इज बेस्ड ऑन द फोकल लेंथ। किससे बेस्ड होती है, फोकल लेंथ। तो इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। किसी भी लेंस का जो रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, वही उसकी पावर है। नाउ कम टू द पॉइंट।
बाय डी। किसे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। सॉरी नॉट डी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। किसे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द पावर ऑफ लेंस is defined as the reciprocal of its focal length कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल उसका पावर कहलाता है। और एक तो मैथमेटिकली लिख लो, मैथमेटिकली we can solve it like that, P is equal to 1 upon F। Here अपन लिख सकते हैं, here P is equal to power of lens, F is equal to focal length, और इसकी यूनिट ऑफ पावर, P की यूनिट क्या होगी? पर मीटर, and it is denoted by diopter, or D। That is power of the lens is equal to 1 diopter। अगर पावर ऑफ लेंस 1 diopter है तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? When the focal length of the lens is 1 मीटर। अगर फोकल लेंस की 1 मीटर है, देन पावर ऑफ लेंस इज 1 डायप्टर। क्लियर? तो पर मीटर डायप्टर की वैल्यू होती है, वो पर मीटर होती है। पर मीटर इसलिए होती है क्योंकि एफ की वैल्यू मीटर में रखेंगे तो 1 अपॉन एम आती है, तो 1 अपॉन एफ मींस पर मीटर। तो पावर इज द 1 डायप्टर व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर। जब फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाती है तो पावर लेंस की 1 डायप्टर होती है। तो इन दिस वे वी हैव टू डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस। देयर इज समथिंग फॉर यू that sometime there is a two lenses are combined। जब दो lenses को combine कर दिया जाता है तो then the what is the power of the lens। अगर two or more lenses are combined, अगर ज्यादा lenses combine करने वाले में 1 + 2 + 3 + 4 lenses combine कर रहा हूं तो इसकी पावर P1 हो जाएगी, इसकी पावर P2 हो जाएगी, इसकी पावर P3 हो जाएगी, इसकी पावर P4 हो जाएगी, एंड सो ऑन। एंड टोटल P जो होगा PT मतलब P टोटल, दैट इज P1 + P2 एंड P3 एंड P4। तो पावर होती है जो बढ़ती चली जाती है। तो पावर ऑफ द लेंस बिकम P1 + P2 + P3 + P4। अगर इसी को फोकल लेंथ की फॉर्म में रखा जाता है तो 1 upon Ft मतलब टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 upon F1 + 1 upon F2 + 1 upon F3 and so on। In this way we calculate the total power of the combined lenses। combination of the lenses अगर दे रखा है तो हम किस तरह से पावर निकालेंगे? It is calculated by P1 + P2 + P3 + P and so on। तो in this way we have to study the power of the lenses। Now the next topic is lens formula। लेंस फॉर्मूला क्या है? तो लेंस फॉर्मूला को हम लोग अभी देख लेते हैं। हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, तो मिरर फॉर्मूला था 1 upon F is equal to 1 upon B plus 1 upon U। This is the mirror formula। Then what is the difference between the mirror formula and the lens formula? Actually होता क्या है कि मिरर फॉर्मूला में बीच में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती है, मींस 1 upon B plus 1 upon U रहता है, मींस दे आर द सम, दीज आर द सम। तो हम लिख सकते हैं इसका कि इट इज द सम ऑफ द डिस्टेंस, ये रेसिप्रोकल, the sum of the reciprocal of the distance of the image
and the distance of the object from the mirror, and it is reciprocal of the equal to the reciprocal of focal length. Similarly here the length formula is 1 upon f, that is 1 upon v minus 1 upon u. Here the value is negative. Clear? The length formula okay, then the definition becomes it is the negative sum of the reciprocal of the distance of the image and the distance of the object from the lens. Distance of the image और distance of the object lens का है उसका negative sum, positive sum नहीं, it is a positive sum, it is only sum, and it is a negative sum. The negative sum of the distance of the image and distance of the object from the lens, and it is equal to the reciprocal of the focal length. Similar like that mirror formula. Mirror formula की तरह ये भी क्या है 1 upon f के बराबर होता है. Clear? So here the f is equal to focal length, v is equal to distance of the image from the mirror lens, and the u is the distance of the object from the lens. Clear? So this is the lens formula. And what is the relationship of the height of the, similar like for the mirror, there is a combination between the m, magnification, that is view upon v upon u. मिरर फॉर्मूले के अंदर m की वैल्यू थी वो नेगेटिव में आती थी, v upon u, here the length is पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगी पॉजिटिव रहेगी. मिरर के अंदर नेगेटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव. मैं दोनों को एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है. तो मिरर फॉर्मूले में, लेंस फॉर्मूले में यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, इसमें यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया. Similarly it is also h dash upon h, and it is also h dash upon h. तो ये चीज है रेशियो. मैग्निफिकेशन का मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी. सिमिलर लाइक द मिरर, it is the ratio of the distance of the image from the lens to the distance of the object to the lens, and it is also a ratio of the height of the image and height of the object. Clear? In this way we have to complete our chapter light, reflection and refraction, and there are numerical aspects of these chapter. Clear? Now the numericals of this chapter are completed to my next video. Thank you very much for watching my video and learn about the light. Share and subscribe and give your best comment to increase my energy, to encourage me to make the more videos for you. Thank you very much. वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया. कलमी धर्म में करनी शर्म ना, जख्मी जख्म लगते मरम ना, चतनी लगने दुखती तपन ना, सगने बढ़ती रकम आ. कलमी धर्म में करनी शर्म ना, जख्मी जख्म लगते मरम ना, चतनी लगने दुखती तपन ना, सगने बढ़ती रकम आ. वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया.